नमस्कार, समाचार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। सिख विरोधी दंगा पीड़ितों की तरह आतंकवाद पीड़ितों को भी दिया जाए मुआवजा। लुधियाना में नुक्कड़ नाटक के जरिए स्कूली बच्चों ने लोगों को स्वच्छ भारत की मुहिम से जुड़ने का दिया संदेश। श्री हनुमान जी की जयंती पर श्री दुर्गाना मंदिर में श्री हनुमान जी का हुआ भव्य श्रृंगार। लुधियाना में एक दुल्हन ने शादी के बाद ससुराल वालों के साथ जाने से किया इनकार। अब खबरें विस्तार से। सिख विरोधी दंगा पीड़ितों की तर्ज पर अब पंजाब में आतंकवाद के काले दौर में मारे गए लोगों के पीड़ित परिवारों को भी मुआवजा दिए जाने की मांग उठाई गई। इस संबंध में आज भाजपा के जिला कार्यालय में हरबंस लाल खन्ना स्मारक में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बलदेव चावला ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और वित्त मंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि आतंकवाद से पीड़ित परिवारों को भी मुआवजा राशि जारी की जाए। मेरे पति ਨੂੰ रात कोठे तो बुलाया गया ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅੱਖ ਲੱਗੇ ਪਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਗੋਲਵੜ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਰਲਾ 2 ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਰਟੌਲ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਲਟਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਕਾਤਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ, ਕੋਈ ਕੌਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ। ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਛ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖੜਕੂਆਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ 20,000 रुपया, 30,000 रुपया, फिर 50,000 रुपया, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੋਟਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2500 ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸਿਕ ਸੇਵਾ ਕਿ ਵਧਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ। 2500 ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5,000 ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। मैं क्या 781 करोड़ रुपये तुम देंदे मंगा के देने। उन्होंने लैटर भी लिखा प्रधानमंत्री। मैं एक लैटर हूँ इस वेले नरेंद्र मोदी जी ने लिखा कि 781 करोड़ रुपया बिड़ा पेंडिंग जो कांग्रेस के टाइम च है वो मिलना चाहिए, पर अभी तक जवाब नहीं आया, साड़ी मीटिंग भी नहीं है। फिर उन्होंने हूँ मैं फिर रिमाइंडर पाया। उस समय राजनाथ सिंह जी ने मैं एक लैटर पाया तो उन्होंने भी रिमाइंडर पा दिता। ਹੁਣ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਨੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 781 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ। ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਤਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के 125वें जन्मदिवस पर संतपाल मित्तल एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से एक समागम करवाया गया, जिसमें ट्रस्ट के चेयरमैन राकेश भारती मित्तल ने मुख्य मेहमान के रूप में विदेश मंत्री और पटियाला से विधायक परनीत कौर का स्वागत किया। इस समागम में 3 शख्सियतों को संतपाल मित्तल अवार्ड से सम्मानित किया गया और सरकारी स्कूल एयर और गैर सरकारी स्कूल के 1100 के करीब विद्यार्थियों को 37 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी गई। ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਔਰ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿੰਗ 125 ਇਅਰਸ ਆਫ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ's ਬਰਥਡੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਇਹ ਨॉन ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜੋ
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਲਈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾ ਇਹ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। I wanted to be a golden decade, not for 10 years, but for many more years. And we have been through a very good 60, 70 years, because without what has been done since the time of Prime Minister Nehru, we would not have reached the stage where we are now. Every house has cars, we have electricity, we are up in the world eyes. Punjab Pradesh Congress मजबूत रहे और लोगों के हित दे काम कर। I have already categorically denied that I never had and I don't have an account, and beyond this I don't want to say anything. I have told you I am a Congress worker and a Sipahi and will follow the dictates of my party. लुधियाना के होटल पार्क प्लाजा में चल रही 2 दिवसीय प्रीमियम स्कूल एग्जीबिशन के अंतिम दिन पेरेंट्स का क्रेज बेस्ट स्कूलों में अपने बच्चों की एडमिशन करवाने के लिए रहा। पेरेंट्स का आकर्षण अब देश के स्कूल एजुकेशन बोर्ड से हटकर इंटरनेशनल लेवल के बोर्ड पर जाना शुरू हो गया है। अपने बच्चों के भविष्य के कारण काफी संख्या में पेरेंट्स एग्जीबिशन में पहुंचे और विभिन्न बोर्ड के सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त की, जहां पर बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए खास रोबोटिक प्रोग्राम भी डिजाइन किए गए। मानव रचना स्कूल, मानव दी रचना, मानव दी रचना तुसीं समझदे हो सारे, ये रचना हो रही है एक बच्चे दी। बच्चा जिंदगी च की चाहता है, मैं सारी दुनिया जावां, मैनूं सब कुछ आना चाहिए, मैं जे खेल करां तो खेल पूरी तरह करां, जे पढ़ां तो पूरी तरह पढ़ां, जे मैं ड्राइंग करां पूरी तरह करां, हर तरह नाल। मानव रचना का मेन मकसद यही है इत्थे आउण दा कि बच्चे विच वो सारी क्वालिटी आवे, वो सारा रुझाव हर पासे लगे, हर चीज़। इसलिए मानव रचना में जिहड़ा करिकुलम भी बनाया गया, हर एक टॉपिक नूं लैके, हर एक कॉन्सैप्ट नूं लैके बड़ा क्लीयरली किया गया कि बच्चा हर फील्ड च अगे बढ़े। बहुत सारे पेरेंट्स आ रहे हैं हमारे पास और बहुत ट्रस्ट के साथ आ रहे हैं, एंड द बेस्ट इज़ कि बहुत अवेयर हैं, दे आर अलर्ट। इट्स नॉट दिस कि अगर कहीं पे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो हम उनको वहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं। पेरेंट्स आर सीकिंग बेटर फैसिलिटीज़ फॉर चिल्ड्रन, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कि बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, हर तरीके की फैसिलिटीज़ हों बच्चों के पास, उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो टू ग्रो, and they are approaching us for that, and they know that मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल लुधियाना is capable, और वो सारा कुछ उनको प्रोवाइड करके दे सकते हैं जिस तरीके की उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उनकी विजुअलाइजेशन है कि आफ्टर 14 ईयर्स हमारा बच्चा लाइफ में ये बनेगा, उसके संग हम मैच कर सकते हैं। हमारी आइडियोलॉजी, हमारी फिलॉसफी इन सिंक है लोगों की एक्सपेक्टेशंस के साथ, और बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है, एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट कि 1st October we've come to this city and such an overwhelming response from people. They are believing in us, or they're supporting us, and I think that's great. That's the best thing that can happen to us. We are very confident that we are a Premier League institution here in this part of the country, और हम यहाँ बहुत अच्छा करने वाले हैं। आज अमृतसर के काउंसिल ऑफ जूनियर इंजीनियर, पंजाब सरकार बिजली बोर्ड और पंजाब सरकार पावर कारपोरेशन लिमिटेड की ओर से स्टेट बॉडी पटियाला के संदेश के अनुसार अमृतसर सिटी सर्कल दफ्तर के सामने एक रोष रैली निकाली गई। इस रैली की प्रधानगी इंजीनियर कुलवंत सिंह और अमरदीप सिंह की ओर से की गई। इस मौके पर उन्होंने बताया कि हमने अपनी मांगों को लेकर ये रोष रैली निकाली है, और उन्होंने बताया कि ये रोष रैलियां सारे पंजाब में सर्कलों के सामने अपनी मांगों को लेकर की जा रही हैं। ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਟੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਰਕਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬੋਡੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਈ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਕੇਲ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੱਧ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਧ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 150 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, 5350 ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 5500 ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ CMD ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ। ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜਈ ਕੌਂਸਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,
ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰ PCL ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पूरा करके जई कौंसल ਦਾ ਰੋਸ ਆ ਉਹਨੂੰ नरम करे। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती पर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री जी ने हर भारतीय को इस मिशन में शामिल होकर इसे सफल बनाने की अपील की थी। इस अभियान में बॉलीवुड कलाकारों, हजारों सरकारी स्कूल कर्मचारियों और स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री जी का साथ दिया था। इसी के चलते आज लुधियाना में भी एक स्कूल के बच्चों ने लुधियाना की शराबा नगर मार्केट में नुक्कड़ नाटक के जरिए आम लोगों को इस मुहिम से जुड़ने की अपील की और देश को कैसे साफ रखा जाए इसकी जानकारी नाटक के जरिए दी। नुक्कड़ नाटक करा था जिसमें हमने दिखाया कि अगर हम सफाई रखेंगे तो कोई भी बच्चा मलेरिया के शिकार नहीं होएगा और अगर हम स्वच्छ रखेंगे अपना देश तो अपना देश भी बहुत साफ रहेगा। जो ये लोग सारे नीचे सामान फेंकते हैं उन्हें नहीं फेंकना चाहिए। हमने उन्हें ये सिखाने के लिए करा है कि हमें चीज़ें बाहर नहीं फेंकने चाहिए। अगर हम सफाई चलो सब मिलकर सफाई करें ताकि दुनिया के सारे लोग मलेरिया के शिकार ना हो। आई एम रोमिका। बच्चों ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, हमें अपने शहर को साफ रखना चाहिए। ये सिर्फ सफाई कर्मचारियों का काम नहीं है, ये एक हर सिटीजन का एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चों ने बताया है कि हम कैसे अपनी गाड़ियों में से मतलब कितना कूड़ा बाहर फेंक देते हैं। ये सोचते हैं कि ये सफाई कर्मचारी सुबह आएंगे और उठा लेंगे। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शर्क नहीं करना चाहिए। हमें बिल्कुल एक अच्छे इंडियन नागरिक की तरह अपने देश को, अपने शहर को, अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना चाहिए। जैसे कि ये स्वच्छ भारत अभियान जो भी लॉन्च किया है 2 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने, आई थिंक वी ऑल हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और जब तक हम खुद से नहीं शुरू करेंगे ये चेंज कभी नहीं होगा। तो ये अभियान बहुत जरूरी है। आई थिंक वी ऑल मस्ट बी अ पार्ट ऑफ इट। मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चों ने आज हमारी आंखें खोल दी। देखो ਜਿਹੜੀ मोदी साहब ने लहर शुरू की है बहुत खुशी हो रही है। एक्चुअली कहते अभी स्टार्टिंग बच्चों तो ही होनी चाहिए है। अगर बच्चों ने हुणे अपनी हैबिट बना ली भी असी अपना देश घर सब कुछ स्वच्छ रखना है तो सानू आने वाले टाइम च इस तरह का ही नज़र आएगा। इंडिया सिंगापुर नू कंपीट करेगा। 100% असी बहुत खुश हाँ भी दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चों ने इस प्रोजेक्ट नू अपने हथ लिता है और शुरुआत की है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ देख के ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ बाकी ਵੱਡੇ गंद फैलाने वो भी बंद हो जाएंगे। ਮੈਨੂੰ होप है। देश भर में सफलता का स्वाद चख रही भाजपा अब पंजाब में पूरी जोश में दिखाई दे रही है और इसके कार्यकर्ता पहले दबी जुबान में अपनी नाराजगी जाहिर करते थे, लेकिन अब तो वो खुलेआम अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आप खुद ही सुन लीजिए लुधियाना में भाजपा के सीनियर नेता सुखविंदर सिंह गरेवाल किस तरह बादल परिवार के साथ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने बोला है भी पंजाब अशांत हो जाएगा अगर गठबंधन टूट गया। मैं समझता हूं पंजाब अशांत नहीं होगा। सरदार प्रकाश सिंह बादल जी का मन अशांत है क्योंकि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी का 7 साल राज रहा। बीजेपी के वर्कर्स ने अकाली दल को सहन किया और मैं श्रोमणी अकाली दल के जो पार्टी है उसका सत्कार करता हूं, जत्थेदार साहबान को सलूट करता हूं। लेकिन बस बदकिस्मती ये है कि श्रोमणी अकाली दल पर जो काबज हुए पूरे का पूरा परिवार, राज उनका ही रहा और केवल व केवल भाजपा अकाली दल की ऊपर उस परिवार के ऊपर स्टैंप लगी हुई है। आतंकवाद था क्या सरदार प्रकाश सिंह बादल जी वो चेतावनी तो नहीं दे रहे। मैं समझता हूं यहां पर सद्भावना है, प्रेम है और लगता है भी सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने जो बयान दिया है भी यहां अशांति हो जाएगी। यहां प्रदेश अशांत नहीं हो सकता, लेकिन मेरे को लगता है भी सरदार प्रकाश सिंह बादल जी का मन अशांत है। देखो ये तो तय हमारी केंद्र की लीडरशिप करेगी, लेकिन हम उनके सिपाही हैं और जो भी फैसला करेंगे हम उस पर पूरे का पूरा एक एक वर्कर एकजुट एकमुठ होकर के उसका पालन करेंगे। ये तो वही बता सकते हैं भाई इस उम्र में ऐसा बयान देना, लोग तो इज्जत करते हैं। लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा भी श्रोमणी अकाली दल के वर्कर्स का, उनके जत्थेदारों को मैं सलूट करता हूं।
बदकिस्मती ये रही है भी श्रोमणी अकाली दल पर काबिज एक परिवार हो गया और सरकार बन गई। सरकार केवल वह सरकार है, एक परिवार की सरकार है, ऊपर श्रोमणी अकाली दल और भाजपा की मोहर लगी हुई। नुकसान हुआ है, पंजाब का नुकसान हुआ है, सभी लोगों के सामने हुआ है, पंजाब निवासियों के सामने हुआ है। 2009 से मैं आवाज उठा रहा हूँ, सैंड की, लैंड की, ट्रांसपोर्ट पे और मीडिया पे कब्जे की बात कर रहा था, लेकिन ड्रग्स आ गई और कभी सोचा नहीं था भी हमारे नौजवानों की जिंदगी बर्बाद होगी, परिवार बर्बाद हो जाएंगे। और यहाँ मैं समझता हूँ अब थोड़ा केंद्र भी सख्ती करे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय लीडरशिप, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी पंजाब को देखें ताकि पंजाब के नौजवानों को नशा मुक्त पंजाब बनाया जाए, पंजाब के नौजवानों को नशे से बचाया जाए। देखो ये तो सबके सामने है, सैंड पर कब्जा, लैंड पर कब्जा, ट्रांसपोर्ट पर कब्जा, मीडिया पर कब्जा, कहाँ नहीं कब्जा हमारा। हमने ये सामान ले जाना कहाँ है? आदमी को तो सिर्फ 2 रोटी चाहिए, पता नहीं क्या दिमाग में हो रखा है। लेकिन राजनी सेवा स्लोगन को लोग मखौल करने लगे हैं। अब तो यार बस करो। श्री राम सेवा परिवार और श्री दुर्गियाना कमेटी द्वारा मंदिर में स्थित श्री बड़ा हनुमान मंदिर लंगूरोवाला में चौथा श्री हनुमान जयंती महोत्सव बड़ी श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें श्री हनुमान जी के पावन विग्रह को इलायची, काजू और मेवे के साथ श्रृंगार किया गया और श्री हनुमान जी को 56 प्रकार के भोग लगाए गए। इस दौरान मंदिर परिसर को वृंदावन से आए हुए कारीगरों द्वारा फूलों के साथ सजाया गया। इस मौके पर हजारों भक्तों ने मंदिर में माथा टेक कर सुख समृद्धि की कामना की। ये हनुमान जयंती का जी प्रोग्राम हो रहा, 4 साल तो लगातार हनुमान जयंती का प्रोग्राम मनाया जा रहा है। ये सारे वृंदावन तो कारीगर आए हैं, जो तुम सजावट देख रहे हो फुलों की, ये सारे वृंदावन तो आए हैं। 4-5 दिन तो लगातार ये सजावट की तैयारी कर रहे हैं और हर साल इस तरह साढ़े गराजी का पहले पूजा होती है, उसके बाद वो लंगर शुरू होएगा 3 बजे तो लैके राती 10-11 बजे तक, जितों तक भी चलेगा। शामी साढ़े इत्थे कीर्तन मंडलियां आनियां, कीर्तन होएगा और 5-6 दिन तो लगातार लगे। तुहाडे सामने बंदे साढ़े अपने पूरे सेवादार साढ़े जो भी है सारे लगे हुए हैं। मेरा नाम अनिल शौरी है जी, मैं श्री राम सेवा परिवार का जनरल सैकटरी हाँ और मेरी सेवा इत्थे लगी हुई है हनुमान जी के मंदिर के विच। मतलब श्री राम सेवा परिवार जी ने मेरी लाई हुई है और साडे मतलब मंदिर के विच ये 10 दिन तो मेरे ख्याल प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है और कोई वड्डा नहीं कोई छोटा नहीं, साडे सारे सेवादार साडे भरा ने और साडियां बावां ने साडे नाल कंधा मिला के साडे नाल काम करते पे ने। बस बाबा जी उन्होंने खूब फल देंगे, अच्छा फल देंगे और बस सब ते कृपा करेंगे जी। लुधियाना में आत्मा नगर इलाके में स्थित गुरु अर्जुन देव गुरुद्वारे में उस समय हंगामा हो गया जब दुल्हन ने शादी के बाद ससुराल जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर हंगामा हुआ। दुल्हन के ससुराल जाने से इनकार करने का कारण तो किसी को भी नहीं पता चल पाया है। इसके बाद वर पक्ष ने चौकी आत्मनगर पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कथित तौर पर उन्हें 3 घंटे तक चौकी में बैठाकर वापस भेज दिया। लेकिन इस मामले में लड़की वालों का पक्ष जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अब्दुल्लापुर बस्ती 10 नंबर गली च होया जी गुरुद्वारे दे विच गल जी। सारे आनंद घर जाने बाद कुड़ी कहती मैं नाल नहीं जाना, घर दे कोई कारण नहीं दसते, कोई वजह नहीं। अं सारा इन्ना खर्चा भी किया हुआ, सारा दर्द भी हो गया, असं अगे पिछे किसी पासे दे भी नहीं रहे। हुण पुलिस वाले ने यह कहते FIR लिखो जी, कहते FIR अं लिख नहीं सकते। अं क्या कोई FIR लिख के कापी कहते कच्ची लिख ली जी, सवेरे आओ। जबकि गुरुद्वारा थाने का मतलब होंगे किसी पुलिस चौकी से जाइए अं FIR जिस तरह मर्जी लिखाइए, सानू लिख के रिसीव करके दी जाए, कब लिखाई है। बिल्कुल खुश नहीं है जी, क्योंकि मौके तो सानू FIR करके मिलनी चाहिए है। भाई पुलिस माने साडे नाल जिहड़ा धक्का होया जी, सानू जिहड़ा नाइंसाफी हुई है उहदा इंसाफ कराया जाए। शादी तो पता नहीं, हुण पड़ताल चल रही है भी शादी कंप्लीट पूरी होगी सी कि नहीं होगी सी। लड़की इतना नोटिस में पुलिस की आया है भी लड़की ने जो लड़के का चेहरा दिखा है तो उसने फिर इनकार किया है ब्याह से। ये पड़ताल चल रही है, कंप्लीट हो गए सी कि नहीं हो गए, ये पड़ताल से बात पता लगेगी। ये तो हुण पड़ताल से पता लगेगा भी लड़की कैसे मान गई कि नहीं मानी, भी क्या बात सी इनकी। जो दोनों पक्षों के बयान लिखने तो बाद जो बनती कार्रवाई अमल च लै दी जाएगी तो पड़ताल तो पता लगेगा भी किसका कसूर है किसका नहीं है। लीगल एडवाइजर जो लेके सलाह जो बनती कार्रवाई पुलिस अमल में जाएगी। आज तक आपने डांस के कई किस्से देखे होंगे, लेकिन जिस डांस के महारथी से हम आपको मिलाने जा रहे हैं वे सबसे अलग है।
जिसने अपनी लाचारी को दूर कर एक मिसाल कायम की है। ये है 21 साल का राजेश, जिसको कि बचपन से ही डांस का शौक था, लेकिन एक रेल दुर्घटना में इसकी दोनों टांगें टूट गई। लेकिन अपने शौक को जिंदा रखने के लिए उसने हिम्मत नहीं हारी। राजेश ने अपनी लाचारी को खत्म कर अपने डांस के जुनून को जिंदा रखा। वह एक अच्छा लेखक भी है। यही नहीं, सुर और ताल की इस दुनिया में वह खुद संगीत की अपनी धुन भी निकालता है, लेकिन उसका डांस हैरान कर देने वाला है। दोनों टांगे ना होने के कारण भी वह इतने सफल तरीके से डांस करता है कि हर कोई हैरान ही रह जाए। नेतावां ने शर्म लाई वे रब्बा भैड़िए मंगियाई सब कुछ महंगा, नाल टमाटर कुड़ी दा लहंगा, साडे दे सब कुछ महंगा, इन्हां सारी कीमत वधाई दे दो, बीते समय दी निशानी दे, आज़ादी नहीं। एक्सीडेंट हुआ तो उम्मीद नहीं थी डांस कर पाऊँगा, बट धीरे धीरे चलना छोड़ा। डॉक्टर ने तो कहा था कि आपको बैसाखियों के साथ ही चलना है और ज़्यादा दौड़ना भागना भी नहीं है, बट मैंने बैसाखियाँ भी छोड़ दी और धीरे खुद ही चलने लगा। और फिर घर में गाना सॉन्ग में मेरा भी दिल करता, बच्चे डांस करते, बर्थडे वगैरह पर डांस करते थे, तो मेरा भी मन करता डांस करने को। धीरे 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 स्टार्ट किया। एक बार गिरा बेड पर, उसके बाद गिरा भी नहीं और प्रैक्टिस की। और हाँ, पेन वगैरह होती है, सहना भी पड़ता है। जितनी पेन सहता हूँ उतना ही कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। संगीत के अलावा मैं राइटर भी हूँ, स्टोरी लिखी है, सॉन्ग्स लिखे हैं मेरे। अभी मैंने तीसरी कॉपी स्टार्ट की है, तीसरी बुक में हूँ अभी मैं। उसके बाद मैं अपना ही म्यूज़िक तैयार कर रहा हूँ, अभी बच्चों के साथ म्यूज़िक तैयार कर रहा हूँ। एक महंगाई पे सॉन्ग भी लिख चुका हूँ, अभी उसको देखो अभी क्या होता है। बाकी नज़रिया देखो सभी को, तो ये जो है ये हैंडीकैप, बट मैं नहीं मानता। बाकी जो देखता है कि हैंडीकैप है, तो मैं अपने आप को फील नहीं लेना कि मैं हैंडीकैप हूँ। मैं नॉर्मल, जो नॉर्मल इंसान काम नहीं कर सकता, मैं वो भी काम कर सकता हूँ। डांस का शौक नहीं, एक जुनून है कि डांस करना है और कुछ बनना है, डांस करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर सकता हूँ डांस के लिए। बट मैं पेन को भी एक खुशी की तरह लेता हूँ। जब मेरे को दर्द होता है तो मैं स्माइल करता हूँ, वो दर्द होता है तो मैं दर्द को इग्नोर कर देता हूँ। अभी भी मेरे को दर्द हो रहा है, डांस कर रहा तभी भी दर्द हो रहा है। दर्द मेरे को हमेशा ही होता रहता है, क्योंकि जो मेरे जॉइंट पे उस पर ये लेग्स है, तो दर्द हमेशा ही रहता है मेरे को। बट मैं अब उसको इग्नोर फील नहीं करता दर्द को। दर्द मेरे को अभी भी हो रहा है, बट नो, एक अच्छा डांसर और डायरेक्टर बनना, बस ये मेरा सपना है कि डायरेक्टर बनूँ, डांसर बनूँ। और जो अकेडमी है रियली, अगर मैं मैच 1 आ जाए नचला में विनर बना तो कोशिश पूरी रहेगी। बन गया तो अमृतसर में अकेडमी में फर्स्ट और फ्री रखूँगा। जो हैंडीकैप बच्चे हैं फ्री आए मेरी अकेडमी में आए स्पेशल उनके लिए। बाकी अकेडमी तो मैं खोलूँगा ही। नो, जो ਇਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹਰ ਕ ਪੂਰਾ ਹੋਏ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਇਹਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਬੜੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਮਾਲ ਦਿਲ ਕਿੰਨਾ ਰੋਂਦਾ ਜੇ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਇਹਦੀ ਹਰ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਏ, ਜੋ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ हर खुशी दे भगवान ने। रेलवे ने टिकट दलालों पर नकेल कसने के लिए रिफंड के नियमों में बदलाव किया है। नियम के मुताबिक ट्रेन छूटने की स्थिति में अब यात्री को रिफंड के लिए 3 दिन के भीतर ही अपना टिकट लौटाना होगा। ऐसा करने पर ही उन्हें टिकट के आधे पैसे वापस मिलेंगे, जबकि 3 दिन बाद रेलवे ऐसे किसी भी टिकट पर विचार नहीं करे। शिव की नगरी वाराणसी के बाद सरकार का ध्यान अब भगवान राम पर है। दरअसल वाराणसी के बाद अब अयोध्या को टूरिस्ट सिटी सेंटर के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है, जिसके तहत सरकार इस शहर को चमकाना चाहती है, ताकि देसी व देशी टूरिस्ट जहां बड़ी तादाद में आए और पर्यटन के क्षेत्र को विस्तार मिले। एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सिख विरोधी दंगा पीड़ितों की तरह आतंकवाद पीड़ितों को भी दिया जाए मुआवजा। लुधियाना में नुक्कड़ नाटक के जरिए स्कूली बच्चों ने लोगों को स्वच्छ भारत की मुहिम से जुड़ने का दिया संदेश।
श्री हनुमान जी की जयंती पर श्री दुर्गाना मंदिर में श्री हनुमान जी का हुआ भव्य श्रृंगार। लुधियाना में एक दुल्हन ने शादी के बाद ससुराल वालों के साथ जाने से किया इनकार। इसी के साथ आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ ताज़ा खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।